Hello everyone, welcome to Law Prep tutorial. My name is Neelam and I'm going to be your trainer for critical reasoning. I hope all of you are done with festivities and celebration and come back with vim and vigor to prepare for this exam. In today's session, we are going to start a new topic, that is paradox, resolving paradox. It's one of the sections or one of the topics which is commonly tested in critical reasoning. In your module, in your exercises, as well as in your actual paper, PYQ practice, you must have seen this question coming very, very frequently. So you need to understand what paradoxes are, and you also need to understand how to resolve them, because CR is going to test how to resolve these paradoxes, and English is going to test what paradoxes are. So you need to have the clarity for both. Okay, so let's get started with today's session, that is understanding paradox and then resolving the paradox. But before resolving, let's understand what these paradoxes are. I hope all of you are clear with this figure of speech, which you commonly face in different exams. Paradox, irony, simile, metaphor. So paradox is also one of the figures of speech. So paradox is nothing but contradiction. There are two things, there are two sentences, or there are two actions which cannot coexist. उनमें कुछ apparent विरोधाभास है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, और इस वजह से दो चीजें साथ में नहीं रह सकती. ठीक है, और उसी को हम पैराडॉक्स बोलते हैं. Look at the example. The more you know, the more you realize how much you don't know. So the more you know, that means the more acquisition you have for the knowledge, the more you realize कि आपको कितना कम पता है, आप कितने अज्ञानी हैं. ठीक है, तो जो ज्ञानी लोग होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का अर्जन करते हैं, धीरे धीरे उनको पता चलता है कि एक्चुअली हाउ मच इग्नोरेंट दे आर, बिकॉज मोर दे नो द मोर दे रियलाइज कि कितना कुछ है जानने के लिए, उनको कितना कम पता है. सो अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ज्यादा जब आप जानते हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि आपको बहुत कुछ आता है, बट ज्यादा जानने से आपको ये एहसास होता है कि आपको कुछ नहीं आता है. सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड दैट्स अ पैराडॉक्स ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट देखिए, the more you try to control everything, the more things feel out of control. Again, a paradox of control. That clearly means कि आपको ये लगता है कि अगर आप कंट्रोल करते हैं चीजें, तो चीजें आपके कमांड में रहेंगी और things are not going to go haywire. But the more you try to control, the lesser things are in control. That is also a paradox of control. So let things loose, let yourself loose sometime. That's what people say. Third देखिए, you have to slow down to go faster. Again, थोड़ी सी ऐसी बात है जो डाइजेस्ट नहीं होती है इजीली. फास्ट जाना है तो फिर आपको स्लो क्यों करना पड़ेगा? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी डीप एंड प्रोफाउंड, विच सजेस्ट कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कई बार अपना पेस आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इफ यू वांट टू गो फास्टर, आगे जाना है, स्पीड बढ़ानी है, तो सम टाइम यू हैव टू स्लो डाउन योर पेस. Apparent contradiction, but that's what it is. That's why it is a paradox. Next देखिए, you often feel most alone when surrounded by people. That's something which we all face. Sometime when we are disappointed, when we are upset, when we are sad, or when we are dejected because of a number of reasons. Despite having all the people around us, we feel that we are alone because we are immersed in our own thoughts. That is what is the paradox of loneliness. आपके साथ आसपास सभी लोग हैं, but फिर भी you feel an aching feeling in your heart because you feel that something is departed. So that is what is paradox of loneliness. तो ये तो हो गई बातें paradox की कि paradox क्या है, right? So paradox basically दो चीजें हैं जो आपस में जिनकी बनती नहीं है, जो आपस में conciliatory नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस में वो दी हुई है. राइट, सो दैट इज वॉट इज पैराडॉक्स. जैसे हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं अब, लेकिन हम लेस कम्युनिकेट करते हैं. इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे मीडियम हैं, इतनी सारी डिवाइसेस हैं, बट नॉनदलेस वी आर कम्युनिकेटिंग लेस. राइट, वी हैव मोर टू ईट बट वी हैव लेस टू डाइजेस्ट. राइट, वी हैव बिगर हाउसेस, स्मॉल फैमिलीज. वी हैव मोर एक्सपर्ट्स बट वी हैव मोर प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये सभी पैराडॉक्स हैं, ये सभी पैराडॉक्स ऑफ लाइफ है. तो यहाँ तक तो ये क्लियर हुआ कि पैराडॉक्स होता क्या है. आई एम श्योर आपको फिगर ऑफ स्पीच में भी ये पता होगा, और विद दिस विद दीज एग्जांपल्स दैट आई जस्ट साइटेड,
It's crystal clear what these paradoxes are. Basically विरोधाभास लाइफ में जब होता है, ठीक है, so that is what is paradox. अब क्या यही टेस्ट होगा आपका सीआर में? नो, सीआर में ये चीज टेस्ट नहीं होगी कि पैराडॉक्स है कि नहीं है. सीआर में ये टेस्ट होगा कि विरोधाभास तो है, रीजनिंग में, आर्ग्यूमेंट में विरोधाभास तो है, लेकिन इस चीज को कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे खत्म और रिजॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. Resolving the paradox. Look at the example. We'll do the example, but before that, we just try to understand कि हमको CR में फिर करना क्या है. If we don't have to identify the paradox, what is it that we are required to do? CR asks you to devise or to understand a situation जिसमें दोनों चीजें साथ में हो रही हैं. Both the things. ठीक है? There are more experts, there are more problems. ठीक है, तो ये थोड़ा विरोधाभास है क्योंकि मोर एक्सपर्ट्स के साथ आपको क्या होना चाहिए, ज्यादा सॉल्यूशंस होने चाहिए, लेकिन आपको ज्यादा एक्सपर्ट्स के साथ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो किस सिचुएशन में ये एग्जिस्ट कर सकता है, आपको वो सिचुएशन बतानी है. ठीक है, सो एनी कॉमन ग्राउंड व्हिच मेक्स इट पॉसिबल दैट दीज टू अपैरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एग्जिस्ट और को एग्जिस्ट, दैट इज व्हाट इज योर आंसर. ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं. फर्स्ट देखिए, more gyms, more obesity. So that is a paradox. With more gym, you possibly must have more people who are lean, thin, fitter, और physical fitness जिनकी बेहतर है. But ज़्यादा gym तो खुल रहे हैं, but you see people who are getting obese. So थोड़ा सा contradiction है. अब आपको ये बताना है ये किस situation में possible है. Even though the number of gyms has increased, obesity levels have also gone up. So that is what is paradox here. अब किस situation में ये possible है, that's what you have to think about. ठीक है? So possibly ये इस situation में possible है जब लोग gym तो जा रहे हैं, exercise तो कर रहे हैं, but अपनी diet पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. So this is a situation which reconciles these two apparently contradictory statement कि gym तो जा रहे हैं, लेकिन खाना पीने पे बिल्कुल control नहीं है. And since they are not having any control on their diet, and that's why they are not losing any weight, because gymming will not suffice unless you control your diet. ठीक है, तो अगर ये आपको फैक्ट दिया जाता है तो ये दोनों सिचुएशन आपकी रिकंसाइल हो जाएंगी. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से कि पीपल आर टेकिंग द मेंबरशिप ऑफ जिम, बट दे आर गोइंग ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज एंड देन दे आर नॉट गोइंग टू जिम. सो जिम तो ओपन हो रहे हैं एंड दे आर अर्निंग मनी बिकॉज पीपल pay for the first installment or for initial months or for annual membership, but they actually don't end up joining it for entire year. पूरे साल की membership दे देते हैं but कुछ ही दिन जाते हैं. ठीक है, and that is why gym तो कमा रहे हैं because they are getting the annual membership, but people are not getting thinner because they are going only for a few days. So ये दो ऐसी situation है जो आप contrive कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, और जिसकी वजह से ये possible है कि gym तो खुल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग फिर भी फिटर नहीं हो रहे या फिर भी ओबीस ही रह रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. लुक एट अनदर एग्जांपल. हायर एजुकेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो हायर एजुकेशन के साथ होना क्या चाहिए कि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयबल होने चाहिए और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए और लोग जॉबलेस नहीं होने चाहिए. दिस इज व्हाट इज यूजुअली द आउटकम व्हेन यू हैव हायर एजुकेशनल लेवल. बट हो क्या रहा है, ज़्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है. अ लॉट ऑफ पीपल आर जॉबलेस एंड दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स. सो आपको अगेन ये सोचना है कि किस सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि एजुकेशन तो हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत PhD स्कॉलर्स निकल रहे हैं, बहुत पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उसके बावजूद जॉब्स का नंबर नहीं बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी जॉबलेस हैं. सो यू हैव टू थिंक लाइक अ सिचुएशन जिसमें जॉब पे जो रिक्वायरमेंट है या जॉब में जो चीज़ें नेसेसरी है, जो प्री रिक्विजिट है, दे आर नॉट मैच्ड विद द सिलेबस विच इज इम्पार्टेड इन कॉलेजेस. तो कॉलेज जो पढ़ा रहा है और जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, उन दोनों में थोड़ा सा डेफिसिट है, उन दोनों में थोड़ा सा गैप है. सो हमारा जो कॉलेज का करिकुलम है, जो कॉलेज का सिलेबस है, इज नॉट एबल टू मीट द इंडस्ट्रीज डिमांड और कॉर्पोरेट डिमांड, और उसी वजह से लोग पढ़ तो रहे हैं बट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उनमें डेवलप नहीं हो रही है. एंड सिंस दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, हेंस दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स. सो एजुकेशन इज वन थिंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इज अनदर थिंग. सो उसमें गैप है, इसी वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है. और अ सिचुएशन लाइक कि बहुत सारे बच्चे
एक ही स्ट्रीम में जा रहे हैं, लेट्स से इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग जा रहे हैं थिंकिंग कि इंजीनियरिंग इज गोइंग टू गिव देम जॉब, ओवर सप्लाई हो रही है उस चीज की, डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है, ओवर सप्लाई हो गई है इंजीनियर्स की, इसी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स क्या हो रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हाईली एजुकेटेड है बट दे आर स्टिल jobless. So any situation which brings a scenario where these two apparently contradictory statements can coexist will be your answer. Here we are thinking about those situations. Look at another example. Third, more awareness, more reported crime. ठीक है, तो लेट्स से विमेन को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जा रहा है कि उनके क्या क्या अधिकार है, उनके क्या क्या ड्यूटीज है, और उनको क्या क्या संरक्षण मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉ से, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। और जैसे ही अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है वैसे ही क्राइम का रेट भी बढ़ रहा है। आप ये सोचेंगे कि ये दो चीज़ें आपस में कोएग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा अगर अवेयरनेस बढ़ रही है तो क्राइम कम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचना है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, इफ वी से कि ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से अब विमेन ज्यादा रिपोर्ट कर रही है, ठीक है, क्राइम बढ़ नहीं रहा है, क्राइम उतना ही है जो पहले था, लेकिन अब बिकॉज दे हैव अवेयरनेस, दे नो देयर राइट्स, दे नो व्हाट गारंटीज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स देम as a citizen of this country, and since they are more informed citizens, that is why they are more inclined to report any crime that is committed against them. यहाँ पे क्योंकि वो एनकरेजमेंट उनको मिल रहा है इसलिए वो रिपोर्ट ज्यादा कर रही है। इट्स नॉट कि क्राइम भी ज्यादा हो रहा है, जस्ट रिपोर्टिंग हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, रिपोर्टिंग बढ़ गई है अवेयरनेस की वजह से। यहाँ पे आप एक जब सिचुएशन को बताते हैं तो उससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये सिचुएशन है जो ये दो ऑपोजिट चीजों को साथ में लेके आ रही है। ठीक है, so that is what is resolving the paradox. I hope we are crystal clear with these examples that what you need to do in order to resolve the paradox. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, ताकि हम इन्हीं रूल्स को अप्लाई कर सके, इसी तरीके को अप्लाई कर सके कि कैसे आपको रिजॉल्व करना है पैराडॉक्स को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, रीड इट केयरफुली एंड एज वी डिड सम प्री थिंकिंग कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो इसको पॉसिबल बनाएगी, और फिर हम ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है, एविडेंस अभी जो रीसेंट है वो कंक्लूसिवली ये बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का कोई रिलेशनशिप नहीं है ह्यूमन लाइफ स्पैन से। ठीक है, तो अगर आप लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका मतलब इफ समबडी इज गोइंग टू लिव, लेट्स से somebody is going to live, let's say 60 years, so he is going to live 60 years only whether he has high cholesterol or low cholesterol. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का लाइफ स्पैन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, बट उसके बावजूद ये नया एविडेंस है, डॉक्टर स्टिल एडवाइज पेशेंट्स विद हाई कोलेस्ट्रॉल टू टेक मेडिसिन एंड एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर 60 साल जी रहे हैं आप 60 साल ही जिएंगे, 60 इयर्स ही आपका लाइफ स्पैन रहेगा। नंदलेस अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है आपको फिजिशियन एडवाइस कर रहे हैं कि प्लीज उसको कम कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, डिस्क्रिपेंसी है, मेरी एज नहीं बढ़ रही है, मैं जितना जी रही हूँ उतना ही जीऊंगी, उसके बावजूद डॉक्टर मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि प्लीज हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कीजिए। ठीक है, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि कैसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये डॉक्टर की एडवाइस पॉसिबली लाइफ को बढ़ाए नहीं बट पॉसिबली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहांस करे। नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू आर गोइंग टू लिव may not increase, but the quality of life may matter because of your cholesterol level. ठीक है, so if this is something, let's look at the option. First says high cholesterol level are proven to be correlated with hypertension disorders. ठीक है, fine, hypertension disorders के साथ associated है, लेकिन क्यों कम करने को हमको बोला जा रहा है? ठीक है, so we are also making this assumption that hypertension is bad. ठीक है, वी डोंट नो वेदर इट्स बैड और नॉट, बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसके साथ ये रिलेटेड है, बट वी नीड टू नो कि व्हाई इट इज बीइंग एडवाइज्ड दो इट डज नॉट इलोंगेट आवर लाइफ स्पैन। ठीक है,
So this is not your answer. B देखिए, many doctors receive large gifts from pharmaceutical companies. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए, उनको कुछ ना कुछ मोटी कमीशन मिलती है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, इसलिए उनको एडवाइस कर रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि एडवाइस वो मेडिसिन किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से उनको पैसा मिलता है. अगर ऐसा होता तो पॉसिबली ये फिर भी आंसर हो जाता कि डॉक्टर्स इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है. ठीक है, सो वी डोंट नो, दिस इज स्पेसिफिकली फ्रॉम दोज मेडिसिन which are for cholesterol level. Third, most medications that doctors prescribe to reduce cholesterol level are clinically proven to be effective. Fine, medicines are good, but nonetheless, why are they being given? जब उससे मेरी एज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो why are they being prescribed? So that is what is my paradox here. Low level of cholesterol are proven to increase the quality of life. ठीक है, so when you have this piece of information which in a way reconciles these two apparently contradictory statement, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी एज पे, उसके बावजूद मुझे क्यों एडवाइस की जा रही है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है, बिकॉज भले ही जितने ही साल जिए 50, 60, 65, 70, but those years must be qualitative years. You must not be in a vegetative state, you must not depend on other, you must be fully functional, and you must actually be fully active so that you can function well. So that is what makes your answer D. तो डॉक्टर्स इसीलिए ये दे रहे हैं. So हमने एक सिचुएशन सोची and we also found an option which kind of resonated what we thought. Answer is D here. Look at the next question. Over the past 10 years, insurance premiums have increased, ठीक है, resulting in a large decrease in insurance enrollment across the country. तो क्योंकि प्रीमियम बढ़ गया है, प्रीमियम लेट्स से पहले 10,000 हुआ करता था, जो अब प्रीमियम हो गया है लेट्स से 20,000 रुपए. ठीक है, तो अब 20,000 सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इनरोलमेंट कम हो गया है. तो पहले 50 लोग प्रीमियम इंश्योरेंस कराते थे, अब लेट्स से सिर्फ 40 करा रहे हैं या 30 करा रहे हैं. उसके बावजूद however, उसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड इन ईच ऑफ दीज 10 years ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसी पीरियड में 10 साल में इनका रेवेन्यू बहुत बड़ा है. ठीक है, कम लोग करा रहे हैं इंश्योरेंस क्योंकि प्रीमियम बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी इनका प्रीमियम बहुत बड़ा है. इंडस्ट्री एनालिस्ट प्रेडिक्ट फर्दर इंक्रीज इन ईयर्स टू कम, और इंडस्ट्री एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि ये और भी इंक्रीज होगा इन कमिंग ईयर्स. ठीक है, तो अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन तो दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि नंबर कम हुआ है लेकिन इनका रेवेन्यू फिर भी बढ़ा है. एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम होनी चाहिए, जबकि दूसरी चीज बढ़ रही है. अब सोचिए किस सिचुएशन में ऐसा होगा. सो लेट्स से जिस कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया है, उस कोर्स की जो फीस है वो अभी 1 लाख रुपए है लेट्स से. ठीक है, और वो जो फीस है लेट्स से वो 1.5 लाख हो गई. ठीक है, तो उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 50% इंक्रीज हो रहा है. 1.5 लाख क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो एडमिशन ले रहे हैं वो भी कम हो गया. लेट्स से वो 10% कम हुआ. ठीक है, तो वो 100 से 90 स्टूडेंट हो गए. 100 स्टूडेंट पहले 1 लाख देते थे, अब 90 स्टूडेंट 1.5 लाख देंगे. ठीक है, स्टूडेंट का नंबर तो कम हुआ है, लेकिन जो फीस की बढ़ोतरी है वो 50% हुई है, और स्टूडेंट का जो नंबर है वो 10% कम हुआ है. ठीक है, इसलिए जो वो बढ़ोतरी है वो ज्यादा है, उसने ऑफसेट कर लिया जो कमतरी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, और इसी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू आपकी कंपनी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज योर डिस्क्रिपेंसी हियर. नाउ look at the options which matches the description that we just discussed. More individuals are seeking a subsidy for their health care. अगर सब्सिडी ढूंढ रहे हैं, अगर सब्सिडी वो चाह रहे हैं, so why is companies insurance increasing? We don't get the answer through this. If they want subsidy because they can't afford the premium, that doesn't mean कि हमें ये आंसर मिल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है. This answer is not doing anything to resolve the paradox. This option. The decrease in the number of people enrolling for health insurance over the past 10 years has been more than offset by the increase in insurance premium. जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे फीस का जो इंक्रीज है that happened by 50%, और जो स्टूडेंट का नंबर है वो कम हुआ 10%. तो लगभग 40% का दोनों में फर्क है. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, द ह्यूज डिफरेंस, कंपनी अभी भी रेवेन्यू कमा रही है. लेट्स से वो 20% भी अगर डिक्रीज होता, बच्चे 80 हो जाते, तो भी कंपनी कमाती, क्योंकि वो 20%
और ये 50%. सो 30% का अभी भी फर्क होता है, एंड दैट इज वाई कंपनी विल स्टिल मेक हायर रेवेन्यू. ठीक है. सो बी matches the description. See देखिए, the rise of concierge medicine exceeds the number of those enrolling in traditional insurance in most high income areas. सिर्फ medicine का cost बढ़ गया है, that doesn't actually answer कि इसका revenue क्यों बढ़ा. लोगों का number कम हो गया, revenue क्यों बढ़ा. This is not answering. D देखिए, most insurance company raise their premium every 3 years. हर 3 साल में बढ़ा देते हैं. Again, we don't know कि इनका वो क्यों बढ़ा है, revenue क्यों बढ़ा है. The answer is B. ठीक है? So with a little pre-thinking, when you actually know what you need to do, the answer finding is going to be a cakewalk. Believe in the process and follow the process diligently, so as to do at least 20-25 question practice with this process, so that your mind gets a memory, a muscle memory for a specific type of question. और जैसे ही वो पैराडॉक्स देखेगा, उसको पता होगा माइंड को कि आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है. सो फॉर एटलीस्ट 15, 20, 25 क्वेश्चन ऑफ पैराडॉक्स, अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी. स्टार्ट प्री थिंकिंग कि व्हाट डू आई नीड टू रिकंसाइल दीज टू थिंग्स. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज, recent polls of admission officers at college have shown कि जब वो evaluate करते हैं students की application, तो वॉलंटियर वर्क को वो कम वैल्यू करते हैं देन टेकिंग ऑन लीडरशिप रोल्स इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो एडमिशन ऑफिसर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो वॉलंटियर वर्क को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल्स को. जैसे अगर आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट इज गोइंग टू बी वैल्यूड मोर. लेकिन जो स्कूल के काउंसलर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं ज्यादा वॉलंटियर वर्क के लिए देन लीडरशिप रोल्स. ठीक है. तो दोनों की जो थॉट्स हैं, जो दोनों की ओपिनियन है, बिल्कुल अलग है. एडमिशन काउंसलर जो यूनिवर्सिटी के हैं वो कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट के जो काउंसलर, स्कूल के जो काउंसलर्स हैं वो अलग बोल रहे हैं. सो देयर इज डिस्क्रिपेंसी. ठीक है. सो वॉलंटियर वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल काउंसलर एंड लीडरशिप रोल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेज काउंसलर, कॉलेज एडमिशन काउंसलर्स. तो आपको ये बताना है कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों एग्जिस्ट करती है. सो एनी सिचुएशन, एनी सिनारियो, एनी डिमेंशन विच शोज कि स्टूडेंट कि जो स्कूल के जो काउंसलर्स हैं वो वॉलंटियर वर्क में कुछ ना कुछ वैल्यू देख रहे हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन देख रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर सजेस्टिंग स्टूडेंट टू गो फॉर दैट. ठीक है. सो एनी ऑप्शन विच मैचेस दिस डायमेंशन विल बी आवर आंसर. लुक एट द ऑप्शंस. फर्स्ट सेज, some high school counselor believe that the personal development that can result from volunteering is more important than the competitive edge that a leadership role can earn a student applying for college. तो यहीं पे हमें पता चल गया कि स्टूडेंट जो काउंसलर हैं, स्कूल के जो काउंसलर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि इससे उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है वॉलंटियर काम से, वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेटिटिव एज से, जो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जरूरी है. एंड दिस गिव्स यू अ रीजन व्हाई दे आर endorsing for volunteer work than leadership roles. Second, देखिए, roles in student leadership are limited, and so not every student can obtain such a position. बहुत ही कम position होती है. Of course, everybody cannot ascend to a leadership position, and that's why there are fewer roles. And since there are fewer roles, not all students can be leaders, and that's why student counselor do not recommend having leadership position. Possibly this is a very narrow approach, because just because कम है इस वजह से वो उनको भी encourage नहीं करेंगे जो leadership position पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है. And ये option ये भी नहीं बता रहा है आपको कि volunteer work में वो क्या देखते हैं, because they are suggesting to go for volunteer work. So B is also not the answer. C देखिए, high school counselor tend to disagree with the admission criteria at colleges. Again, that is not something कि दोनों की ओपिनियन अलग अलग है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं. Possibly they see some value, there is a reasoning behind why they are suggesting students to go for volunteer work. So there has to be a reason. We are doing logical reasoning, right? B, volunteer work is something that a person can engage at any stage of life, while leadership position in student organization are isolated to a particular place and time. ठीक है, ये दोनों के बीच के डिफरेंस बता रहे हैं कि कभी भी आप volunteer work कर सकते हैं, बट स्टूडेंट लाइफ में ही आप लीडरशिप रोल ले सकते हैं. अगेन, इट्स नॉट टेलिंग यू व्हाई स्कूल काउंसलर्स आर सजेस्टिंग टू गो फॉर वॉलंटियर वर्क. ऑप्शन ए इज योर आंसर, बिकॉज दैट इज व्हाट गिव्स यू अ रीजन. ठीक है. सो इट वाज अ नो ब्रेनर. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4.
After replacing her old air conditioner with a new energy efficient unit, Paula's electricity bill increased. तो यहाँ पे पॉला ने क्या किया कि उसने अपना एयर कंडीशनर चेंज कर दिया, ठीक है। और अब जो उसने नया एयर कंडीशनर लगवाया है वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कम एनर्जी लेता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, पॉला का बिल बढ़ गया, ठीक है। सो है डिस्क्रिपेंसी, आपने एनर्जी एफिशिएंट लगवाया है तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए और आपका बिल कम हो जाना चाहिए, कंजम्पशन, बट यहाँ पे बढ़ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू कंट्रीब्यूट्स टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंक्रीज्ड मेंशन अबव एक्सेप्ट। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो इस डिस्क्रिपेंसी को मेंशन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। तो दैट मीन्स देयर कुड बी मल्टीपल सिनारियो थ्रू विच यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन अ पैराडॉक्स, ठीक है। देखिए फर्स्ट देखिए, शी इंस्टॉल्ड an electricity intensive indoor tanning bed after she replaced her air conditioning unit, ठीक है। एयर कंडीशनिंग यूनिट तो आपने जो है वो एनर्जी सेविंग वाली लगा दी, लेकिन सेम टाइम उसी रूम ने आपने एक बेड लगवाया जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव है। तो इसने जो एनर्जी एफिशिएंसी से एनर्जी को बचाया, इलेक्ट्रिसिटी को बचाया, ये जो बेड आपने लगाया जो बहुत इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव है, इसने खपत को बढ़ा दिया। तो दोनों क्या हो गए, ऑफसेट हो गए, और तभी आपका बिल और क्या हो गया, आपका बढ़ गया, बिकॉज पॉसिबली इट्स एनर्जी इंटेंसिव है आपका बेड और इसी वजह से उसने एनर्जी के कंजम्पशन को बढ़ा दिया, ठीक है। सो इट गिव्स यू अ रीजन एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट योर आंसर बिकॉज इट सॉल्व द डिस्क्रिपेंसी। सेकंड देखिए, the new air conditioner uses a smaller share of the electricity used by Paula's home than did the old unit. Let's hold it. See देखिए, following the installation of her new air conditioner, Paula's neighborhood experienced a prolonged severe heat wave requiring heavy use of the new unit. जैसे ही मैडम ने ये लगवाया उसके बाद क्या हुआ, उसके नेबरहुड में प्रोलॉन्ग्ड सीवियर हीट वेव चली लंबे समय के लिए, एंड दैट टू सीवियर। सीवियर थी तो एसी बहुत अच्छी इंटेंसिटी पे चलाना पड़ा, प्रोलॉन्ग था तो लंबे समय के लिए चलाना पड़ा, ठीक है। सो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी वाला जो एसी था, क्योंकि वो लंबे समय के लिए चला और बहुत ज्यादा उस पे चला, कूलिंग पे चला, इस वजह से उसने क्या किया, खपत को बढ़ा दिया। सो दिस ऑल्सो गिव्स यू अ रीजन एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर, इट एक्चुअली रिजॉल्व्स द पैराडॉक्स। डी देखिए, Paula's electricity cost increased by 15% per kilowatt hour after she replaced her air conditioner. जैसे ही उसने ये किया तो कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, ठीक है। आपने एफिशिएंसी वाला लगवाया और उसी समय कॉस्ट बढ़ गई, बिजली का दरें बढ़ गई, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, बिजली का बिल ज्यादा आ गया। So this is also not the answer because this also resolves the paradox कि आपने एनर्जी एफिशिएंट वाला लगाया लेकिन फिर आपका बिल फिर भी ज्यादा आया क्योंकि कॉस्ट ही बढ़ गई, ठीक है। So answer is B. The new air conditioner uses a smaller share of the electricity used by Paula's home than did the old unit. ये कहीं पे भी रिजॉल्व नहीं कर रहा है क्योंकि इससे तो उसका बिल क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए था, ठीक है। So that is why B is your answer. So this question is an example कि actually बहुत सारे scenarios हो सकते हैं जहाँ पे एक particular situation को resolve किया जा सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे reason है because of which her electricity bill could have increased. Let's do the last question. Apartment buildings are better at withstanding tornadoes than mobile homes because they are anchored more solidly to the ground by their foundation. सो जो बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से टॉर्नेडोज को विदस्टैंड कर सकती हैं, एंड्योर कर सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं, क्योंकि वो ज़मीन में ग्राउंडेड होती हैं, उनकी सॉलिड फाउंडेशन होती है, इसी वजह से वो बर्दाश्त कर लेती हैं किसी भी तरह के टॉर्नेडोज को। इन अ रीसेंट टॉर्नेडो हाउएवर, हालांकि अभी एक जो रीसेंट टॉर्नेडो था, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो गई, जबकि मोबाइल होम्स जो बहुत स्टेशनरी नहीं होते, एंकर्ड नहीं होते सॉलिडली इन द ग्राउंड, उनको क्या हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। दे वर नॉट डैमेज्ड, जबकि एक बिल्डिंग जो थी उसको वो डिस्ट्रॉयड हो गई। तो अगेन ऑथर ने पहले हमें फैक्ट बताया कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती है वो सॉलिड होती हैं, उनको डिस्ट्रक्शन इजीली नहीं होता है, मोबाइल फोन्स आर मोर वल्नरेबल। बट अभी एक टॉर्नेडो आया जिसने ये बताया कि जिसमें मोबाइल होम्स जो है वो बचे रह गए, लेकिन टॉर्नेडो जो है जो स्टेशनरी बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। नाउ व्हिच ऑप्शन explains the aftermath of the tornado described above? All structures are somewhat vulnerable to tornadoes. So if all structures are, then possibly
इनको क्यों नहीं हुआ डैमेज, ठीक है। एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स एंड यू आर टेलिंग कि दीज आर बेटर देन दी अदर, तो उसमें उसको क्यों नहीं हुआ, सो ऑल आर देयर, सो उनको भी होना चाहिए था। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। The roof of the apartment building had already been damaged by an ice storm in late winter. अब हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग थी वो ऑलरेडी थोड़ी सी रैमशैकल कंडीशन में थी, ठीक है। उसको ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो चुका था, वो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड थी, कमजोर थी, वीक थी, और इसी वजह से थोड़ा से ही स्टॉर्म ने उसको क्या किया, पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें ऑलरेडी कमी थी, देयर वर ऑलरेडी चिंक्स इन द आर्मर, ठीक है। सो हियर it was already weak and that's why it got destroyed. So this possibly gives you a reason. See, देखिए, the resident of the mobile homes all evacuated while the residents of the apartment building did not. We are not talking about human damage. We are talking about the damage to the building. हम ये नहीं बता रहे कि death toll कितना हुआ. It's only talking about building damage. So तभी आपका ये भी आंसर नहीं है. D देखिए, there are more apartment buildings than mobile homes in tornado prone area. Fine, more है, लेकिन more apartment buildings, ठीक है, more है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ज्यादा होते हैं तभी सेव होते हैं। आपने ये बताया वो सेफ होते हैं मोबाइल होम से, आपने ये नहीं बताया वो ज्यादा होते हैं तभी सेव होते हैं। सो नंबर डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। सो डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर। योर आंसर क्लियरली इज बी, which shows कि ऑलरेडी कमजोर थी, इसलिए उस टॉर्नेडो ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। I hope with these 5 questions that we practiced based on paradox, all these questions were previous year questions, and I hope आपको थोड़ी सी clarity है about what to do, how to approach, and what exactly these questions demand. These questions demand, first of all, you identify what the paradox is. दो statement जो साथ में नहीं रह पा रहे, वो कौन से हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि उसने, पॉला ने एनर्जी एफिशिएंट एसी लगाया, बिल बढ़ा, तो ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वो ज्यादा स्टडी होती हैं, ज्यादा रोबस्ट होती है, और मोबाइल होम्स थोड़े से फीबल होते हैं, लेकिन फिर भी एक टॉर्नेडो में क्या हुआ, बिल्डिंग धराशायी हो गई। तो ये क्या है, तो सबसे पहले पैराडॉक्स समझिए, ठीक है। दो ऐसी चीजें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। देन थिंक अबाउट द सिचुएशन, डू सम प्री थिंकिंग, थिंक अबाउट द सिचुएशन जहाँ पे ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत के एग्जाम्पल्स के साथ किया, ठीक है। सो जैसे हमने कहा कि मोर क्वालिफिकेशन, मोर एजुकेशन, बट मोर अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमने क्या देखा कि हमने डिवाइस किया कि किस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी है। So do that only when you do the paradox question. ठीक है? With this approach, I'm sure it's going to be a cakewalk for you solving these questions, and of course, they also bring a lot of clarity for you to understand the paradox in English for figure of speech. Okay? So keep watching these videos. Thank you so much for being so receptive. And please comment in the section if you think that you have anything to say, and if you are not clear with any of the concepts that we discussed or any of the answers of any of the questions, please comment in the section and let me know what other topic you want me to cover. We started this series a few weeks ago, quite a few weeks ago, and then we discontinued for a little while, but now I have resumed the series again, and every Thursday or one of the weeks I'm going to put up a video on a specific topic that I think is important for CR point of view. And please do let me know your comments and your feedback that which topic you want me to cover in coming sessions. Okay, thank you so much. Happy learning.